Good afternoon all. My name is Rohan Agrawal. I'll be helping you out with chemistry part. I'll be helping you out with chemistry syllabus for your NEET or JEE preparation or basic sciences, whatever the case may be. I believe every one of you can hear me. Right? Students are still joining us. Okay. So, yes, if you can hear me, please raise your hands. If you can hear me, please raise your hands. Please keep your videos on switched off mode. Please keep your laptops, tablets, mobile phone, whatever that case is, on muted format. Yes, I can see you can raise your hands. If you can hear me, please raise your hands. Good. Okay, you can lower your hands. आप अपना हाथ नीचे कर सकते हैं. You can lower your hands. Please unraise your hands. Thank you. So as the students are still joining, we'll wait for like 1 or 2 minutes and then we'll start with the lecture. Today we'll be starting with introduction to organic chemistry. आज हम introduction to organic chemistry start करेंगे. First chapter, first topic of organic chemistry is nomenclature of organic compounds. Nomenclature topic का नाम है. वो topic पढ़ने से पहले हम लोगों को introduction to organic chemistry पढ़ना है. In about 3 or 4 lectures, introduction to organic chemistry will be completed. More or less this week. Yes, you can lower your hands. I sincerely hope there's no time lag. Okay, let's start. Let's start with the lecture. Okay, good. So yeah, my name is Rohan Agrawal. I am a chemistry faculty at Safe Hands Akola. I'll be taking the organic chemistry part starting from now. In the first 3 or 4 lectures, near about 3 lectures, we'll be covering introduction to organic chemistry. This is the lecture 1. I welcome all of you to lecture 1 of introduction to organic chemistry. And so the format of my lectures, मेरे lectures का format ये रहेगा that first and foremost I'll be talking in Hindi as well as in English. Okay. The format of the lectures will be I'll be covering some slides for every class. For most of my classes there will be presentations. PPT format का presentation होगा. आप लोग screen पे देख पा रहे होंगे. Presentation के साथ I'll be using the whiteboard as well to draw some structures or something of that sort. And after some slides, let's say 4 या 5 slides के बाद, I will be opening the room for discussion. उसमें आप लोग आपके doubts and difficulties मुझसे पूछ सकते हैं. You can ask me your doubts and difficulties in the discussion part. Okay. Apart other than this, we'll be having some separate discussion lectures as well, जिसमें हम सिर्फ doubts and difficulties deal करेंगे. As might be the case with other teachers, as might be the case with your other lectures. जब एक particular student doubt पूछ रहे हैं, तो बाकी के सारे students will be on muted mode. Okay. Please take care. Please ensure that all of you are on muted mode right now. You are muted and your video is switched off. And I hope that all of you can hear me and you can see me. Okay. So my name is Rohan Agrawal. I am currently pursuing my PhD from IIT Bombay. I am a BTech chemical engineer from Institute of Chemical Technology, UDCT. There's a chemical engineering institute in Matunga, Mumbai, UDCT. I completed my BTech from there. After BTech, I joined IIT Bombay for my MPhil program. And right now, I'm doing my PhD. So that's about me. I have a teaching experience of roughly 8+ years. I've been coaching for JEE and the NEET chemistry, as well as 8, 9, 10 foundation batches for the past 8+ years. I was associated with Safe Hands back in 2015. So with 2015 to 16, 2014 and 15, I was there with Safe Hands for the academic year 2014-15, and again I have joined Safe Hands as a chemistry faculty. So let's start. So classification of chemistry. So today's lecture will be introduction to organic. आज का lecture introduction to organic chemistry है. उसमें भी आज और ज़्यादा introduction है. तो आज बहुत सारा नया content पढ़ने नहीं मिलेगा.
जो कुछ भी हम बातें करेंगे सिर्फ जनरल डिस्कशन होगा केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री में क्या क्या पार्ट्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों जरूरी है, वो सिलेबस में आता है इसलिए जरूरी है, बट क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 3 लेक्चर्स में हम इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कार्बन की कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एंड उसके बाद नोमेनक्लेचर स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक नोमेनक्लेचर। Right now we'll be dealing only about introduction part. Okay, so there are 3 parts of chemistry: physical chemistry, organic chemistry and inorganic chemistry. इसके अलावा एक और पार्ट होता है which is called as analytical chemistry. इसके अलावा एक analytical chemistry पार्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग है वो भी, बट दैट इज कवर्ड एट हायर लेवल्स। हायर लेवल्स बोलने का मतलब आफ्टर 12th क्लास। प्योर साइंसेस में बीएससी केमिस्ट्री में, बीएससी जनरल में, बीएससी केमिस्ट्री में एनालिटिकल केमिस्ट्री आता है। अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट मेडिकल एजुकेशन। सो फॉर अस, फॉर जेई एंड नीट स्टूडेंट्स, physical, organic and inorganic, these 3 types of chemistry are considered. These 3 types of chemistry are there in the syllabus. Physical chemistry में क्या आता है? Physical chemistry deals with the reactions. Physical chemistry reactions के साथ डील करता है, reaction की speed के साथ डील करता है। It deals with the speed of the reactions. It deals, उसको kinetics बोलते हैं। It deals with the equilibrium. वो equilibrium से भी डील करता है। Equilibrium का मतलब reaction फॉरवर्ड जा रहा है या पीछे जा रहा है, कितना फॉरवर्ड जा रहा है, कितना पीछे जा रहा है। सो फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद रिएक्शन का स्पीड, दैट इज काइनेटिक्स, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम, इट आल्सो डील्स विद द एनर्जी पार्ट ऑफ द रिएक्शन, उसको हम थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। जैसे जैसे हम 11th 12th में आगे और टॉपिक्स पढ़ेंगे, जस्ट हम लोगों ने 10th पास किया, 10th क्लियर किया है, कुछ लोगों का रिजल्ट आ गया होगा, बहुत सारे लोगों का नहीं आया होगा रिजल्ट। 10th के बाद 11th 12th में फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा मैं आप लोगों को इस चीज में। फिजिकल केमिस्ट्री में एक पार्ट होता है एनर्जी का स्पीड वाला पार्ट, उसको काइनेटिक्स बोलते हैं। दूसरा पार्ट होता है रिएक्शन का इक्विलिब्रियम वाला पार्ट, उसको केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तीसरा पार्ट होता है एनर्जी वाला, उसको थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। राइट, सो देयर आर 3 पार्ट्स इनसाइड फिजिकल केमिस्ट्री इटसेल्फ। तो डिफरेंट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर्स है वो 3 टॉपिक्स में हम 3 मेजर पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं, एंड वी कैन बाइफरकेट देम इन डिफरेंट पार्ट्स सच एज फिजिकल केमिस्ट्री, I believe you can see the marker, the red color dot. It can be classified into organic chemistry and it can be classified into inorganic chemistry. जो कुछ भी रिएक्शन के रेट से रिलेट करेंगे, जो कुछ भी रिएक्शन की क्वांटिटी से रिलेट करेंगे, मोल कंसेप्ट की बात होती है, तो वो सारी चीजें आती है फिजिकल केमिस्ट्री में। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन बेस्ड फॉर्मेट, कार्बन बेस्ड केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, और बाकी जितनी भी केमिस्ट्री है उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब होता ये है that all the 3 parts of chemistry are not independent. ये ऐसा नहीं है कि फिजिकल अपने अलग चल रहा है अपने आप, ऑर्गेनिक अलग चल रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग चल रहा है, ऐसा नहीं है। तीनों पार्ट्स इंटरलिंक्ड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सा हेल्प लेना पड़ता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सा हेल्प लेना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो फिजिकल केमिस्ट्री की जो बात होती है, रिएक्शन के रेट की बात होती है, तो वो किसके रेट की बात होती है? ऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस होंगी उसकी रेट होगी, या तो इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस की रेट होगी। राइट, फिजिकल केमिस्ट्री कैन नॉट इटसेल्फ सर्वाइव, क्योंकि अगर रेट की बात करेंगे, थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे, एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, तो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की तो बात करनी पड़ेगी, और वो रिएक्शन या तो ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी या तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट स्टडीड इन इटसेल्फ, ऐसे आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक की रिएक्शंस की बात करनी है तो फिजिकल केमिस्ट्री के कांसेप्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। और उसी के साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक होता है केमिकल बॉन्डिंग, जो आप लोगों ने 10th तक थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको कांसेप्ट्स पता होंगे। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग इज यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट एज वेल। ओके, सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, ये 3 डिफरेंट पार्ट्स है केमिस्ट्री के, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाकी लोगों पे डिपेंडेंसी तो है, लेकिन अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ते हैं, जितना होमवर्क दिया जा रहा है उतना फॉलो करते हैं, नोट्स रिवाइज करते हैं, जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो ध्यान से सुनते हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप लोग आपके सीनियर्स से इंटरेक्ट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके सीनियर्स आपको बोले यार वो ऑर्गेनिक में बहुत ही डिफिकल्ट जाता है यार, वो तो कुछ समझ में ही नहीं आता, उसमें तो यार सिर्फ रिएक्शन ही लर्न करनी पड़ती है। तो इस पे मेरा एक कमेंट है, एक्चुअली मेरे 2 कमेंट्स है। पहली बात, ऑर्गेनिक डिफिकल्ट है, गलत बात है। ऑर्गेनिक बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, प्रोवाइडेड आप लोग रोज होमवर्क कर रहे हो। दूसरी बात, ऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शंस लर्न करनी होती है। तो मेरा उस पे कमेंट ये है कि ऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शंस नहीं है, ऑर्गेनिक में थोड़ी सी रिएक्शंस है, थोड़ी बहुत रिएक्शंस है।
वो रिएक्शंस लर्न करके होती है। तो होता ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। देयर इज अ टर्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वी कॉल इट एज मैकेनिज्म। दैट पर्टिकुलर टर्म मैकेनिज्म डिफाइंस कि वो रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है। और अगर 50 रिएक्शंस है तो पूरी 50 रिएक्शंस का एक ही मैकेनिज्म अगर है तो आप लोगों को 50 रिएक्शंस लर्न करने की जरूरत थोड़ी है, आपको तो सिर्फ एक मैकेनिज्म लर्न करने की जरूरत है। उस एक मैकेनिज्म के बेसिस पे आप 30, 40, 50 रिएक्शंस लर्न कर पाओगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक रूल्स ऑफ ग्रामर। पूरा लैंग्वेज लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, बैठ के ऐसे लर्न नहीं करना है, ग्रामर सीखना है। अगर हम ग्रामर सीख लेंगे तो हम टाइम पे ऐसे बना लेंगे, हम टाइम पे सेंटेंसेस फॉर्म कर लेंगे। तो सेंटेंसेस लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, ग्रामर पता होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैकेनिज्म्स है वो ग्रामर का काम करता है, इट डज द वर्क ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर के बेसिस पे अगर हम लैंग्वेज सीख सकते हैं तो मैकेनिज्म के बेसिस पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं होगी। और फिर थोड़ा बहुत ग्रामर के रूल्स लर्न कर लेंगे, थोड़े बहुत मैकेनिज्म्स लर्न कर लेंगे, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी हो जाएगा। उसी के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बोले जाएंगे, बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को बोला जाएगा। जैसे आज एनसीईआरटी से टॉपिक रीड कर लो, एनसीईआरटी से टॉपिक रीड करने के बाद उसका माइंड मैप बना लो। तो माइंड मैप आपको बनाते आने चाहिए। कुछ आपको होमवर्क दिया जाएगा कि ये 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो वो क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लेने चाहिए। तो अगर आप जैसे जैसे होमवर्क दिया जा रहा है वैसे वैसे फॉलो करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, मार्क माय वर्ड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मक्खन जैसा लगेगा, एकदम सिंपल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड आ गया। और लास्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पेशेंस नहीं रख सकते तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट होगा। तो माय एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स, माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू वुड बी, प्लीज हैव पेशेंस व्हेन डीलिंग विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो शांति से, पेशेंस से पढ़े। कई बार ये होता है कि 4-5 चीजें अभी समझ में नहीं आएगी, अभी अभी तो सब समझ में आएगा, 10 लेक्चर्स बाद, 15 लेक्चर्स बाद 4-5 चीजें समझ में नहीं आएगी। तब फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, तब टेंशन नहीं लेना है, तब ये नहीं सोचना है कि यार कैसे होगा, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जितना समझ में आता है उतना रिवाइज करे, जो नहीं समझ में आता है उसको मार्क करके रखे और क्लास में डाउट में पूछे। आई विल बी प्रोवाइडिंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर ऑल ऑफ यू टू आस्क मी डिफिकल्टीज। डाउट्स है मैं कवर करूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को वो टॉपिक समझ में आए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बट एक ही शर्त है, जब आप डाउट पूछ रहे हो तो बाकी लोग शांति से बैठे रहे। किसी का डाउट चल रहा है, सब लोग ध्यान दे, एक नया कंसेप्ट सबको समझ में आएगा। अब हम लोग 11th क्लास में आ गए, सब स्टूडेंट्स बड़े हो गए, 10th क्लास जैसी बच्चों जैसी हरकतें ना करें, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें और डाउट सेशन में ध्यान दें। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करवा के लूं एंड ऑन दैट बेसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक से कवर हो जाए। ओके, थर्ड पार्टीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कुछ भी कार्बन बेस्ड केमिस्ट्री नहीं है, जो कुछ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, वो सारी रिएक्शंस किस में आती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। तो जो आपका पीरियोडिक टेबल टॉपिक चल रहा है, अभी चल रहा है या हो गया होगा, दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर कुछ लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक में भी बहुत लर्न करना होता है। हाँ, उसमें भी लर्न करना होता है, बट देयर आर सम शॉर्टकट ट्रिक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसमें लर्न करने के लिए इजी हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म्स लर्न कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, so we'll start with the next slide now. Okay, so organic केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है। इसका फर्स्ट पॉइंट है एंशिएंट डेफिनेशंस। द कंपाउंड व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, सो एंशिएंट डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड्स मिले हैं उनसे कोई नया कंपाउंड बना लिया तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये पुरानी डेफिनेशन है। अगर आप ध्यान देंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम आया ऑर्गन, ऑर्गन आया ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग या लिविंग बीइंग। तो द कंसेप्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पुराने जमाने में एंशिएंट डेफिनेशन लिखा है। पहले लोगों को लगता था कि जो कंपाउंड्स लिविंग थिंग्स से मिलते हैं या लिविंग थिंग से मिले हुए कंपाउंड से जो नए कंपाउंड्स बन सकते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे, ऐसा पहले लोगों को लगता था। अभी ऐसा नहीं लगता है, अभी ये डेफिनेशन फेल हो गया है। ध्यान से देखें कि डेफिनेशन में लिखा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डायरेक्टली भी हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। अब डायरेक्टली हो गया मतलब
डायरेक्टली हो गया मतलब बॉडी में डायरेक्टली प्रोड्यूस हो गया, तो डायरेक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। इनडायरेक्टली मतलब बॉडी में कंपाउंड बना, कंपाउंड ए, उस कंपाउंड ए से नया कंपाउंड फॉर्म किया, कंपाउंड बी, तो कंपाउंड बी को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते थे। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, ये एग्जाम में नहीं आता, सिर्फ मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि मुझे कितना आता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक बर्जीलियस हाइपोथेसिस था, बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आप लोगों ने देखा होगा 9th-10th में, बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका एक हाइपोथेसिस था, उनकी एक वाइटल फोर्स थ्योरी थी, ही प्रपोज्ड अ वाइटल फोर्स थ्योरी। स्टेटमेंट रीड करेंगे, मैं रीड करूंगा, सब लोग सुनेंगे। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ सम मिस्टीरियस पावर्स known as vital force and organic compounds cannot be synthesized in the laboratory। तो ऊपर वाले की दुआ से एक ऐसा मिस्टीरियस पावर है, एक ऐसा मिस्टीरियस फोर्स है ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में और प्लांट्स में, जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनमें एक ऐसा वाइटल फोर्स है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। वो वाइटल फोर्स लेबोरेटरी में नहीं है। ये बर्जीलियस का हाइपोथेसिस था, उस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। ध्यान दे कि यहाँ पर लॉ लिखा नहीं है, यहाँ पर हाइपोथेसिस लिखा है। Here the word mentioned is hypothesis। Berzelius said that ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, वो सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही बनते हैं। और लिविंग थिंग्स में क्यों बनते हैं? क्योंकि एक वाइटल फोर्स, वाइटल मतलब नेसेसरी, वाइटल मतलब नेसेसरी, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट फोर्स है जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स बनते हैं लिविंग थिंग्स में। तो ये पुरानी डेफिनेशन है। आज के डेट में तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में बना सकते हैं, राइट। तो मॉडर्न डेफिनेशन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए था, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, the first organic compound to be synthesized in laboratory was NH2CO NH2। it was prepared by Wohler। ये कंपाउंड है जिसका नाम है यूरिया। पहले ये यूरिन से मिलता था, अभी भी यूरिन से मिलता है, बट ये लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज हो गया। किसने सिंथेसाइज किया था? वोलर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको सिंथेसाइज किया था। अमोनियम साइनेट को हीट करके उन्होंने यूरिया बनाया। अब अमोनियम साइनेट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम साइनेट ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया तो बर्जीलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हो गया। जो पुराना कंसेप्ट था दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड इन लिविंग थिंग्स, जो पुराना कंसेप्ट था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड इन लिविंग थिंग्स, वो वाला कंसेप्ट अब फेल हो चुका है। अब नया कंसेप्ट बनाने की जरूरत है, अब नया टेक्नोलॉजी, नया कंसेप्ट डेवलप किया जाएगा, राइट। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आफ्टर दैट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड वी आर गेटिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में अब तक सिर्फ लिविंग थिंग्स से मिलता था, ठीक है, वो वोलर ने करके बता दिया। तो वोलर ने क्या किया? वोलर ने सिर्फ एक कंपाउंड डेवलप नहीं किया, किसी कंपाउंड को हीट करके यूरिया बनाना कोई आसान बात तो थी, लेकिन साधारण बात नहीं थी। वो एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, क्योंकि उससे पुराना कंसेप्ट वाइटल फोर्स थ्योरी फेल कर दिया गया था। ओके, सिंपल लॉजिक है ये। तो द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी वाज यूरिया, NH2CO NH2। स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे इस चीज का हम लोग। किसने फाइंड किया था? वोलर ने फाइंड किया था। कैसे किया था? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके फाइंड किया था, डेवलप किया था। गुड, नेक्स्ट पॉइंट, the first organic compound to be synthesized in laboratory with the help of its elements was acetic acid। it was prepared by Kolbe। कोल्बे नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जो उसके एलिमेंट्स से बना। तो ध्यान दो, ऊपर वाले कंसेप्ट में और नीचे वाले कंसेप्ट में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू रिएक्शंस? ऊपर वाले रिएक्शन में यूरिया बनाया, अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया। कोल्बे ने क्या किया? एलिमेंटल फॉर्मेट में कार्बन लाया, एलिमेंटल फॉर्मेट में हाइड्रोजन लाया, एलिमेंटल फॉर्मेट में ऑक्सीजन लाया और उससे एसिटिक एसिड बना दिया। किसी अदर कंपाउंड से एसिटिक एसिड नहीं बनाया, एलिमेंट से कंपाउंड बनाया। तो कोल्बे की डिस्कवरी भी इंपॉर्टेंट थी। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बना यूरिया, एंड पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में एलिमेंट्स से बना एसिटिक एसिड। The first organic compound which was synthesized in laboratory with the help of its elements was acetic acid, and
First organic compound synthesized in laboratory was simple sir, urea, NH2CO NH2. Okay, तो आई होप यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ रहा है एंड आई सिंसियरली होप लोगों को मेरी आवाज भी आ रही है. ठीक है, हम एक बार फिर से रेज ऑफ हैंड्स कर लेंगे. प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर मी. चैट बॉक्स इज डिसेबल्ड, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर मी. अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो अपना हाथ उठाएं. ठीक है, गुड. दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर विद ऑल ऑफ यू. ये मेरा पहला क्लास है सब लोगों के साथ में. ओके, गुड. ठीक है, यू कैन लोअर योर हैंड्स. यू कैन लोअर योर हैंड्स. प्लीज अपना हाथ नीचे कर लो. वेरी गुड. अब तक जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट तो होगा नहीं, कोई डिफिकल्टी तो होगी नहीं. स्टिल अगर किसी को कोई डाउट है, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डिफिकल्टी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ आवाज नहीं आ रही है, नॉइज क्रिएशन हो रहा है, वॉइस लैग हो रहा है, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, तो यू कैन रेज योर हैंड्स. अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज अपना हाथ उठाएं. मैं उनसे 1:1 डिस्कस करना चाहूंगा. ओके, गुड. So now I'll be allowing yourself to unmute yourselves. Please सब लोग खुद को unmute ना करें. अनूप पाटिल प्लीज unmute yourself. अनूप पाटिल प्लीज आप ही खुद को unmute करें, बाकी लोग प्लीज म्यूटेड रहे. सर. हाँ सर बोलिए. सर आप पीडीएफ की स्लाइड्स व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे? बिल्कुल सर, ये जो प्रेजेंटेशन है ये व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो जाएगा. जो क्लास हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है, ये यूट्यूब पे पोस्ट होके उसका लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा संडे तक. All the slides and everything will be shared on the WhatsApp group. And the recording of the class will also be shared on the YouTube and फिर उसका link group पे share हो जाएगा. That thing will be taken care of. Okay अनूप? और सर आपकी सर. हाँ बोलिए. सर आपका साउंड ब्रेक हो रहा है सर. Please. अनूप आई थिंक अब वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए साउंड का. अगर फिर भी प्रॉब्लम आता है तो हम कुछ नया उसमें अरेंजमेंट करेंगे. ओके ठीक है, थैंक यू. नेक्स्ट. ओके सर. गुड. शांतनु आप कुछ कहना चाहते हैं? Can you please switch over to the previous slide? Can you please switch over to the previous slide? इसमें डाउट है, बोलिए. शांतनु, you have any difficulty in this? Sir, I wanted to take the screenshot, sir. Shantanu, everything will be shared on the group. ठीक है, by Sunday. Today is what? Today is Monday, right? By Saturday or by Sunday, all these slides will be shared with all of you. So if you want, you can take a screenshot or something. Okay, sir. Thank you. Good. Next. Shantanu and Anup, you can lower your hands. ये हाथ बहुत काम आएगा आगे चल के डाउट्स पूछने के लिए. हम यही हाथ यूज करने वाले हैं. ओके अगर कोई और मुझसे बात करना चाहते हैं, if anyone of you wants to talk to me, you can raise your hand and I would like to discuss something. अगर किसी को कोई भी डाउट्स है तो प्लीज रेज योर हैंड्स. आई विल बी हैप्पी टू टेक केयर ऑफ योर डिफिकल्टीज. ठीक है, अब तो कुछ पढ़ाई नहीं है तो क्या ही डाउट होगा इसमें. चलो हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, विल गो अहेड. ठीक है, तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना लेबोरेटरी में? यूरिया बना. और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड पता नहीं कौन सा बना, लेकिन पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिमेंट से कौन सा बना? तो CH3COOH बना. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीस टू थिंग्स. अमोनियम साइनेट किसी कंपाउंड्स को हीट करके कंपाउंड बनाया तो वो पहली बात. बाजार से एलिमेंट्स लेके आ गए, 4 किलो कार्बन लाया, 3 किलो हाइड्रोजन लाया, 4 मोल्स ऑक्सीजन लाया, बैठ के रिएक्शन किया और एसिटिक एसिड बना. ये काम किया कोल्बे ने. तो कोल्बे वाज द साइंटिस्ट हु डेवलप्ड एसिटिक एसिड इन लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ इट्स एलिमेंट्स. एलिमेंट्स की मदद से कंपाउंड बनाया गया लेबोरेटरी में. ओके और वोलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया लेबोरेटरी में. इजी है यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है. सिंपल डिस्कशन चल रहा है. ये जो भी पढ़ाया जा रहा है ये एग्जाम में नहीं आता है, सिर्फ ऐसे ही बताने के लिए. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज हाइड्रोकार्बन. ये डेफिनेशन लर्न होना चाहिए. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. हाइड्रोकार्बन का मतलब ही है हाइड्रोजन और कार्बन. हाइड्रोजन और कार्बन अगर साथ में है तो ही उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे. सिर्फ कार्बन है तो उसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे. सिर्फ हाइड्रोजन है तो भी उसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे. हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. तो कुछ नाम तो पता ही होंगे आप लोगों को, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन. अगर ये नाम नहीं भी याद आ रहे तो भी ये क्या कंपाउंड है ये शायद याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये नाम 9th 10th में सुने हैं ये तो डेफिनेटली सबको याद आ रहा होगा. ऐसा कुछ
ऐसा तो शायद ही होगा पूरे क्लास में जो ये बोले कि सर इथेन, ये वर्ड ही हम लाइफ में पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सिंपल सी बात होती है, उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स का डेफिनेशन है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। और उसके डेरिवेटिव्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन विद सम अदर ग्रुप इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स। तो होता क्या है कि मॉडर्न डेफिनेशन जो हम लोगों ने पिछले वाले स्लाइड पे देखा था, वो मॉडर्न डेफिनेशन क्या था, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये है हाइड्रोकार्बन्स, ये है उनके डेरिवेटिव्स, इनको सबको मिला के क्या बना, इनको सबको मिला के बना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इजी है। तो डेरिवेटिव्स मतलब क्या, हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएंगे और रिप्लेस करेंगे फंक्शनल ग्रुप से, तो उससे क्या बन जाएगा, उससे बन जाएगा डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन लेना है, उससे हाइड्रोजन को डिलीट करना है और उसमें कोई नया फंक्शनल ग्रुप लगाना है, और फंक्शनल ग्रुप लगाने के बाद उस चीज को हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते, उस चीज को बोलेंगे उसका डेरिवेटिव। और हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब एक एग्जांपल हम लेंगे, CO2, CH4 एंड CCl4। सेकेंड वाला कंपाउंड देखे, इसमें सेकेंड वाला कंपाउंड देखो, CH4 सेकेंड वाला कंपाउंड है। CH4 में क्या है, CH4 में कार्बन है और हाइड्रोजन है, ये है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते गए और क्लोरीन लगाते गए, चारों हाइड्रोजन रिप्लेस कर लिए, चारों क्लोरीन लगा दिए, तो क्या बन गया, CCl4। CCl4 इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। CH4 एंड CCl4 आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। CO2 इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों, क्योंकि CO2 हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव नहीं है। If you have difficulties, please raise your hands. Okay. Actually, अभी हाथ मत उठाओ. Don't raise your hands now. After some slides, जैसे अभी तो बहुत बेसिक से स्लाइड्स चल रहे हैं, क्या होता है जनरली whenever I teach online, तो 2-3 स्लाइड्स के बाद I give time to the students डाउट्स पूछने के लिए, तो उस कंडीशन में आप अपना हाथ उठाएं और फिर डाउट्स पूछ लेना. Okay. And also please don't unmute yourselves without asking. मैं आपका नाम पढ़ूंगा, उसके बाद ही आप खुद को अनम्यूट करें. This is just a logistics requirement because of technology issues. नहीं तो बहुत सारे लोग एक साथ बात करेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा. Okay, so you can raise your hands after I ask you to raise your hands. Doubts है क्या? And after I call out your name, आप हाथ उठा के डाउट पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हैं. Okay, anyways, we'll go ahead now. तो CH4 की बात हो रही है. CH4 क्या है? CH4 एक हाइड्रोकार्बन है. CCl4 क्या है? CCl4 एक डेरिवेटिव है. कैसे डेरिवेटिव है? हम हाइड्रोजन को हटाते गए और कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई ग्रुप लगाते गए. तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? हमने क्लोरीन लगाया. ठीक है. तो क्लोरीन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन लगाने पर हाइड्रोजन कम हो गए, क्लोरीन लग गए, CCl4 बन गया. अब जो CCl4 है वो क्या है? वो एक डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव होने की वजह से वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड. लेकिन CO2 के केस में क्या होता है? CO2 जो है वो एक डेरिवेटिव नहीं है. हम हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन को ऐसे नहीं लगा सकते CO2 बनाने के लिए, तो इसीलिए CO2 को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलते. तो प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. CH4 methane is an organic compound. CCl4 carbon tetrachloride is also an organic compound. CH4 is an organic compound because it is a hydrocarbon. CH4 organic compound क्यों है? क्योंकि वो एक हाइड्रोकार्बन है. CCl4 ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है. इट इज अ डेरिवेटिव. डेरिवेटिव मतलब हाइड्रोजन हटा के एक ग्रुप लगा दिया. एंड CO2 जो है वो क्या है? CO2 का ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है. अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स क्या है. Functional groups, it is the part of organic compound which are primarily responsible for its chemical properties. फंक्शनल ग्रुप वो पार्ट होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देता है. हम सब लोगों को ये तो पता है कि दो टाइप के प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट. फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है. तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज वहां से आती है जहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच किया गया था. ठीक है. तो फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज. तो फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड. आप लोगों ने देखा, पहले भी हम लोगों ने देखा एसिटिक एसिड. तो एसिटिक एसिड में ग्रुप कौन है? COOH. ठीक है. तो COOH इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. इट इज अ फंक्शनल ग्रुप. ब्रैकेट में लिखा है.
अल्कोहल OH ग्रुप को अल्कोहल ग्रुप ऐसा हम नाम देते हैं। ध्यान दे कि O के सामने एक छोटा सा लाइन लगाया है, वहां पे एक छोटा सा माइनस का साइन जैसा दिखाई देगा ऑक्सीजन के पहले। वो जो माइनस का साइन है वो क्या है, वो बॉन्ड है, फ्री बॉन्ड है। जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो कहीं तो लगेंगे ना कार्बन चेन को, कहीं वैलेंसी से लगेंगे, तो वो जो यहाँ से लगेंगे वो एक सिंगल बॉन्ड से हमने दिखाया। अमाइन इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप NH2, अल्डिहाइड CHO, ईथर सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ध्यान दो, जो ईथर है, ईथर में क्या है, ईथर में दो जगह पे सिंगल लाइन दिखाई गई है, इसका मतलब वो क्या है, वो एक डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, उसका वैलेंसी 2 है। कार्बोक्सिलिक एसिड का वैलेंसी 1 है, एक ही जगह से अटैच हो सकता है। अल्कोहल का भी वैलेंसी 1 ही है, एक ही जगह से अटैच हो सकता है। लेकिन जो ईथर फंक्शनल ग्रुप है ईथर, वो 2 जगह से अटैच हो सकता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, तो अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन कार्बन हमने लिख दिया तो वो क्या बन जाएगा, ईथर फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। दैट फंक्शनल ग्रुप विल बी कॉल्ड एज ईथर, उस चीज को ईथर बोलेंगे। तो अब तक जो पढ़ा है इसमें काम का क्या है, इसमें काम का सिर्फ ये है कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। डेरिवेटिव्स मतलब हाइड्रोजन को हटा के फंक्शनल ग्रुप लगाने वाली बात है। और फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फंक्शनल ग्रुप के। अब तक सिर्फ इतना काम का है, अब तक सिर्फ इतना हम लोग को समझ के लेना है, ठीक है। अब हम कुछ डाउट्स एक्सेप्ट करेंगे। आई विल बी एक्सेप्टिंग सम डाउट्स एंड डिफिकल्टीज। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डाउट्स। अगर डाउट्स है अब तक जितना पढ़ा है उसमें, तो अपना हाथ उठाएं। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टीज। यस, श्रीतेज बोरा खड़े, प्लीज आस्क योर डाउट। श्रीतेज खुद को अनम्यूट करो और सर, हाँ बोलिए सर। सर फंक्शनल ग्रुप में अगर मतलब एक बॉन्ड होगा तो एक तरफ से वो अटैच हो सकता, और अगर दो बॉन्ड होते तो दोनों तरफ से अटैच हो सकता कि सिर्फ एक तरफ से अटैच हो सकता? अगर दो बॉन्ड है तो दो तरफ से अटैच हो सकता है, और अगर एक बॉन्ड है तो एक तरफ से अटैच हो सकता है। अब जैसे ऑक्सीजन सोचो, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, 2 है, तो वो दोनों तरफ से अटैच हो सकता है। लेकिन क्लोरीन है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, तो वो तो एक ही तरफ से अटैच हो सकेगा ना। CCl4 देखो, CCl4 में 4 क्लोरीन आइटम एक ही कार्बन को अटैच्ड है, लेकिन चारों क्लोरीन आइटम एक ही हाथ से हैंडशेक कर रहे हैं। ऑक्सीजन जो है वो दोनों तरफ से हैंडशेक कर सकता है, दो अलग अलग कार्बन के साथ। इसलिए ऑक्सीजन ईथर बाइवैलेंट या डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है सर। हाँ, यस सर। गुड, अनम्यूट करो। ओके, सो वन मोर रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, अपना डाउट पूछे और उसके बाद खुद को म्यूट कर ले, फिर मुझे बोलने दे, फिर मैं कुछ पूछूंगा तो आप खुद को अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। प्लीज बी म्यूटेड एट ऑल द टाइम्स। सिर्फ आपको पता है कि आपको बोलने का मौका दिया गया है तभी आप अनम्यूट करके बात करें। ये रिक्वायरमेंट सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजी से डील कर रहे हैं, हम किसी जूम ऐप नाम की टेक्नोलॉजी से डील कर रहे हैं, तो इसलिए बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो, पूरी क्लास ठीक से चले, इसलिए ये फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। नॉर्मल वाली क्लासरूम में तो वैसे हाथ उठाते हैं, बोलने का मौका मिलता है तो पर्टिकुलर स्टूडेंट बात कर लेते हैं। सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है कि जब आप डाउट पूछ रहे हैं, डाउट होने के बाद खुद को फिर से म्यूट कर ले। सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू, अगर किसी स्टूडेंट का डाउट है, जाहिर सी बात है मैं उस स्टूडेंट से 1:1 डिस्कस करूंगा, सही बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के लोग बैठ जाए शांति से कुछ भी काम ना करें, वो लोग भी डिस्कशन को फॉलो करें, उसको सुने, बिल्कुल जैसा क्लासरूम में होता है। क्लास में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट डाउट पूछते हैं, टीचर बोर्ड पे बताते हैं, तो बाकी लोग भी तो ध्यान देते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी बाकी लोगों को ध्यान देना है। अगर किसी का डाउट है और मुझे सिर्फ उनको एक्सप्लेन करना होता तो मैं तो उनसे फोन पे ही बात कर लेता, राइट। फोन पे बात करना मेरे लिए और उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सब स्टूडेंट्स क्लास में इन्वॉल्व हो, क्लास में इंटरेक्ट करें, बिकॉज वी आर इन एन ऑनलाइन मोड। इंटरेक्शन थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो गया है, बंद नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मुझसे इंटरेक्ट करें, और उसके लिए जब कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट डाउट पूछ रहे हैं तो बाकी स्टूडेंट्स भी ध्यान दें डाउट पे भी, और जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं उस पे भी, ठीक है। इफ यू हैव एनी अदर डिफिकल्टीज प्लीज रेज योर हैंड्स। अब तक जो पढ़ा है उसमें डाउट है तो अपना हाथ उठाए और डाउट पूछे। हार्दिक प्लीज बोलिए, हार्दिक यू कैन टॉक नाउ। सर लास्ट 5 मिनट्स में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो 5 मिनट्स में क्या पढ़ा है सर आपने? पर लास्ट 5 मिनट्स में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज बताई, ध्यान से सुनिएगा।
हाइड्रोकार्बन एंड द डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? या तो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है या तो उसके डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, बाकी कुछ नहीं। अगर कार्बन और हाइड्रोजन है तो उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो ये हो गए हाइड्रोकार्बन। और डेरिवेटिव मतलब क्या? हाइड्रोजन हटाना है और कोई ग्रुप को लगाना है तो उससे बन जाएगा डेरिवेटिव। तो बोर्ड पे देखो, रिप्लेसिंग हाइड्रोजन विद सम ग्रुप्स इज कॉल्ड एज रिप्लेसिंग हाइड्रोजन विद सम ग्रुप्स कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स। ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स का डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोजन को हटाना है और कुछ ग्रुप लगाने हैं। और कौन से ग्रुप लगाने हैं? फंक्शनल ग्रुप्स। और फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? ये वो पार्ट है मॉलिक्यूल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज देता है। और कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं हमने फंक्शनल ग्रुप्स के। सो दीस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ओके। और CO2 CH4 CCl4, CO2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH4 हाइड्रोकार्बन है इसीलिए ऑर्गेनिक है, और CCl4 डेरिवेटिव है इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिंपल सी लाइफ है। If you have any other difficulties, please raise your hands. अगर डाउट है अपना हाथ उठाए और डाउट पूछे। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट है? नहीं? गुड गुड। अब No, आगे sir. इफ यू हैव डाउट्स प्लीज रेज योर हैंड्स एंड देन आस्क योर डिफिकल्टी। नो बोलने के लिए अनम्यूट करके आंसर मत दो। ओके, नेक्स्ट। अब हम कार्बन के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। सिंपल सी चर्चा कर लेंगे हम कार्बन के बारे में। ओके, लाइफ ऑन अर्थ इज कार्बन बेस्ड। इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहले ऐसा सोचते थे कि लिविंग थिंग्स से मिलने वाले कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। अभी वो डेफिनेशन नहीं रही, लेकिन नाम तो वही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक आया वर्ड ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग थिंग्स होता है। लाइफ ऑन अर्थ जो है वो कार्बन बेस्ड है। कार्बन इज फाउंड इन एलिमेंटल एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म ऑफ अर्थ। इतना सिंपल सा स्टेटमेंट है। कार्बन एलिमेंटल फॉर्मेट में भी मिलता है, कंबाइंड फॉर्मेट में भी मिलता है। कंबाइंड फॉर्मेट में मिलता है मतलब वो कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है। एलिमेंटल फॉर्मेट में कैसे मिलता है? कार्बन इज फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म एज वेल एज इन एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म में वो मिलता है डायमंड के फॉर्मेट में, ग्राफाइट के फॉर्मेट में, कोल के फॉर्मेट में। 9th 10th में हमने डिस्कस किया है। अब जो कार्बन, अगर सिर्फ कार्बन होगा तो उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे क्या? नहीं, वो सिर्फ कार्बन है, वो कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंपाउंड आ गया तो एलिमेंट की बात थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो है जो हाइड्रोकार्बन है या उनके डेरिवेटिव्स। ओके, नेक्स्ट, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। सिंपल सी लाइफ है। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बन जो है वो क्या करता है? कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल एज वेल एज डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। कार्बन जो है वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। और कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है शेयरिंग के मतलब से। शेयरिंग मतलब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। देयर आर वेरी फ्यू आयोनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, तो उसकी बात नहीं करते हम लोग। कार्बन के बहुत ही कम आयोनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड्स है, सो वी डोंट टॉक अबाउट दोस कंपाउंड्स। ओके, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड्स ये कार्बन यूज करता है। फिर एक कार्बन का प्रॉपर्टी होता है कैटिनेशन। आप लोगों ने 9th 10th में सुना होगा। कैटिनेशन मतलब लार्ज चेन्स बनाने का कैरेक्टर। लार्ज चेन्स बना सकता है तो उसको कैटिनेशन बोलते हैं। तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं क्योंकि कार्बन खुद से बहुत दूर तक कंबाइन कर सकता है। कार्बन 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 50 कार्बन है, कार्बन को प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसी चेन फॉर्म कर सकता है। उसी की वजह से क्या होता है? कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, number of compounds of carbon is more than the number of compounds of all the other elements taken together। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के कंपाउंड्स कंसीडर करो और अकेले कार्बन के कंपाउंड्स कंसीडर करो तो कार्बन के कंपाउंड्स ज्यादा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स ज्यादा है एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स। कार्बन अकेला एलिमेंट लाखों करोड़ों कंपाउंड्स बना सकता है, बाकी के एलिमेंट्स सब लोग मिलके भी इतने कंपाउंड नहीं बना सकते। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक डिफरेंट पार्ट है। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग कंसेप्ट है, अलग से आर्टिकल है। सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब इस चीज को हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। वो जो स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे उसको, बॉन्ड नोटेशन सिग्मा, इट इज सिग्मा, ऐसा सिग्मा लिखते हैं। ओके, बोर्ड पे लिखने की कोशिश करेंगे। देखो ऐसा लिखना है सिग्मा को।
दिस इज सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। सर ये कहां से आया? ये चीज आएगा केमिकल बॉन्डिंग में। फॉर द टाइम बिंग सिर्फ इतना समझ लो कि सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोल सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में क्या है? सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है। पाई बॉन्ड कैसा होता है? पाई बॉन्ड को ऐसा लिखते हैं, पाई 3.14 वाला पाई, वही वाला पाई का नोटेशन है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में होता है सिग्मा और पाई। सिंपल लॉजिक, लर्न करेंगे इस चीज को। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल मतलब 3 बॉन्ड हो गए ना, तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड फिर से पाई बॉन्ड। 2 एटम्स के बीच में एक सिग्मा हो सकता, एक से ज्यादा सिग्मा नहीं हो सकते, एक से ज्यादा पाई हो सकते, ठीक है, लेकिन अकेला पाई नहीं हो सकता। फिर से एक बार, बिटवीन 2 एटम्स सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट। Between 2 atoms, sigma bond can exist. Between 2 atoms, pi bond cannot exist. अकेला pi bond नहीं रह सकता, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो वो सिग्मा प्लस पाई दोनों है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड्स है। इसको सिर्फ अभी लर्न करना है, इसका रीजन केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। तो सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज सिग्मा प्लस पाई, ट्रिपल बॉन्ड इज सिग्मा प्लस पाई प्लस पाई। लर्न कर सकते हैं, सिंपल सी चीज है, ओके गुड। नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कार्बन्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या टाइप के कार्बन होते हैं, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बन। प्राइमरी कार्बन मतलब 1 डिग्री कार्बन, एक ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक ही अदर कार्बन एटम को बॉन्डेड है, सिंपल है। सेकेंडरी 2 कार्बन को बॉन्डेड, टर्सरी 3 कार्बन को बॉन्डेड, क्वाटर्नरी 4 कार्बन एटम्स को बॉन्डेड। क्वाटर्नरी मतलब 4 डिग्री, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटर्नरी। 4 डिग्री कार्बन मतलब एक ऐसा कार्बन एटम जो 4 अदर कार्बन एटम्स को बॉन्डेड है। तो टर्सरी कार्बन, अगर कोई कार्बन टर्सरी है तो उसके 4 बॉन्ड्स होंगे, उन 4 बॉन्ड्स में से 3 बॉन्ड्स कार्बन से जुड़े हैं और एक चौथा बॉन्ड कोई दूसरा एटम हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी कार्बन मतलब 4 बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी के 3 एटम्स कुछ भी हो सकते हैं, कार्बन नहीं होने चाहिए सिर्फ, ओके। इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। द नेम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन्स डायरेक्टली अटैच्ड टू द रेड कार्बन एंड नॉट द हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो जो लाल कलर का कार्बन दिखाई दे रहा है, रेड कलर का जो कार्बन है, उसको कितने कार्बन्स अटैच्ड है वो देखो। इधर एक भी अटैच नहीं है तो ये मीथेन है, ये यूनिक है, इसको डिग्री नहीं मिलता। मीथेन का कोई डिग्री नहीं है, मीथेन प्राइमरी भी नहीं, सेकेंडरी भी नहीं, टर्सरी भी नहीं, क्वाटर्नरी भी। प्राइमरी वाले ये देखो, ये जो रेड कलर का कार्बन एटम है ये कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड है? एक ही कार्बन एटम से बॉन्डेड है। ये रेड कलर का देखो, ये 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, दिख रहा है? 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है रेड कलर का कार्बन एटम। रेड कलर के कार्बन एटम पे फोकस करना है। ये वाला कार्बन एटम देखो, ये 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है और ये वाला 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो ये क्या हो गया? क्वाटर्नरी हो गया। क्वाटर्नरी मतलब 4 डिग्री, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, सिंपल, ठीक है। ये वाले कार्बन एटम के बारे में सोचो, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला ब्लैक कलर का कार्बन एटम, इस पे सोचो, ये इसका डिग्री क्या है? ये खुद सेकेंडरी है, क्यों? क्योंकि ये देखो 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। तो हमें हाइड्रोजन को नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि वो कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड है, ठीक है। जैसे ये कार्बन एटम देखो, ये वाला कॉर्नर पे जो सबसे ऊपर है ना, यहाँ पे ऊपर वाला, ये ऊपर वाला कार्बन एटम दिखाई दे रहा है, ये वाला कार्बन एटम का डिग्री क्या होगा? ये 1 डिग्री होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन एटम से बॉन्डेड है, क्योंकि इसके 3 हाइड्रोजन है, अदर एटम्स है। कार्बन से कार्बन बॉन्डेड मतलब वो हो जाएगा 1 डिग्री, ये कार्बन एटम 2 डिग्री, सिंपल है, इजी है ये। सो दिस इज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, 4 टाइप के 4 कार्बन एटम्स होते हैं। फिर अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसको 2 बार कंसिडर नहीं करना है हमें, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे, प्लीज पे अटेंशन। ये वाला जो कार्बन एटम दिखाई दे रहा है, पहला वाला कार्बन एटम, ये कौन सा है? ये 1 डिग्री कार्बन एटम है। दिस फर्स्ट कार्बन एटम इज 1 डिग्री कार्बन एटम, ओके। दिस कार्बन एटम इज 3 डिग्री। देखो वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 ही कार्बन से जुड़ा है, 4 कार्बन से नहीं जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री। ये वाला फिर से 1 डिग्री,
ये 2 डिग्री कार्बन एटम है, 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से 2 बार जुड़ा है लेकिन है 2 डिग्री। एक कार्बन से 2 बार जुड़ा है लेकिन है तो एक ही कार्बन, इसके लेफ्ट में एक और इसके राइट में एक, ये भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन नहीं लिखा है, ठीक है। सोचो अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिख भी दूं या OH ग्रुप लिख देते, अल्कोहल बना दिया, देखो OH ग्रुप लिख दिया अपन ने, अल्कोहल बना दिया, लेकिन फिर भी ये क्या हो जाएगा, ये चीज फिर भी 1 डिग्री रहेगा। दिस विल स्टिल बी 1 डिग्री कार्बन एटम। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। बाकी कोई भी एटम हो कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उससे भी फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ये देखना है कि कितने एटम से वो चीज जुड़ी हुई है, कितने कार्बन एटम से वो चीज जुड़ी हुई है। तो दिस इज अबाउट डिग्री ऑफ कार्बन। ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बन के डिग्री के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, बैक टू द प्रेजेंटेशन। तो ये स्टेटमेंट्स देखिए, प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन एटम, एक ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बन, एक ऐसा कार्बन एटम जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। टर्शरी एक ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और क्वाटरनरी एक ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये उसका एक एग्जांपल है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। अब तक जो पढ़ा है इसमें, इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टीज प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर कोई डाउट है तो अपना हाथ उठाए और डाउट पूछे। किसी को कोई डाउट नहीं है या मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, किसी को डाउट है, गुड। शांतनु प्लीज आस्क। सर जो कार्बन एटम किसी से भी मतलब किसी दूसरे कार्बन से अटैच नहीं रहते उनको प्राइमरी भी बोल सकेंगे ना? नहीं बोल सकेंगे सर। जैसे मीथेन देखो, मीथेन वाला एग्जांपल बोर्ड पे देखो, मीथेन दिखाई दे रहा है प्रेजेंटेशन में। ये एक ऐसा कार्बन है जो एक भी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री नहीं है। 1 डिग्री मतलब एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। उसे कोई नाम नहीं दिया गया? नहीं, उसको कोई नाम नहीं दिया गया क्योंकि ऐसा सिर्फ एक ही कंपाउंड है ना मीथेन, उसको नाम मीथेन बोल दो। अगर कार्बन से जुड़ा ही नहीं है तो वो चीज मीथेन जैसा हो जाएगा। या कार्बन टेट्राक्लोराइड सोच लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एक भी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ नहीं है, राइट। तो उसको 1 डिग्री नहीं बोलते। 1 डिग्री शुरू होता है एक कार्बन एटम के साथ। मतलब मैं एक कार्बन हूँ, मैं किसी दूसरे से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं 1 डिग्री, मैं 2 लोगों से जुड़ा हुआ हूँ तो 2 डिग्री, मैं 3 लोगों से जुड़ा हुआ हूँ 3 डिग्री, और मैं 4 लोगों से जुड़ा हुआ हूँ तो 4 डिग्री। समझ में आया सर? हाँ सर। गुड, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डाउट, श्रावणी। श्रावणी श्रावणी सर ये 4 से ज्यादा भी हो सकते क्या? मीन्स अभी कार्बन को 4 कार्बन से ये हुआ है, शेयर हुए, तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं? आप बताइए मैडम, आपको क्या लगता है इससे ज्यादा हो सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है? मे बी यस। मे बी यस। ओके, योर आंसर इज रॉन्ग। कार्बन का वैलेंसी 4 है तो एक कार्बन हाँ। एटम, राइट। कार्बन, आपका डाउट बहुत अच्छा था, ठीक है। म्यूट कर लो खुद को। गुड। डाउट कैसा भी हो अच्छा ही होता है, ठीक है। डाउट कभी खराब नहीं होता है, तो डाउट्स पूछते रहना चाहिए, ओके। तो देखो कार्बन का वैलेंसी 4 है। अगर कार्बन का वैलेंसी 4 है तो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो 4 से ज्यादा कार्बन एटम से तो बॉन्ड नहीं कर सकता। तो 4 डिग्री इज द अपर लिमिट। 4 से ज्यादा कार्बन एटम से बॉन्ड नहीं कर सकता, इसलिए उसको क्वाटरनरी तक ही जा सकते हैं। और अगर वो कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है तो इसका मतलब वो कोई दूसरे एटम से बॉन्डेड नहीं है। मतलब वहां पे वो हाइड्रोजन OH ग्रुप कुछ भी नहीं रख सकता, राइट। ठीक है, नेक्स्ट डाउट हार्दिक। हार्दिक प्लीज आस्क। सर आपने वो पिक्चर में सिंगल कार्बन को कंसीडर किया, अगर वो CH3 को कंसीडर किया तो कंडीशन सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? ठीक है सर, अगर CH3 को कंसीडर किया तो क्या होगा? देखो CH3 जो है वो तो कंपाउंड ही नहीं है, क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी फुलफिल नहीं हुई ना अभी। CH3 एग्जिस्ट नहीं करता, CH3 कंपाउंड थोड़ी हुआ। कार्बन की वैलेंसी 4 है तो उसको चारों तरफ से कुछ ना कुछ एटम्स तो लगाने पड़ेंगे ना। तो अगर कुछ ना कुछ एटम्स लगाने पड़ेंगे तो फिर कुछ ऐसा लिख सकते हो आप, बोर्ड पे देखो, ऐसा लिख सकते हो, CH3 OH लिख सकते हो। तो ये वाला भी क्या हो गया, ये वाला 1 डिग्री नहीं हुआ, क्योंकि ये जो कार्बन है ये 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है और एक ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ऊपर OH, नीचे H, लेफ्ट में H और राइट में H। ध्यान दो, राइट। ये जो स्ट्रक्चर है बोर्ड के लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये है CH3OH का स्ट्रक्चर। ये भी 1 डिग्री नहीं है, ये भी मीथेन जैसा है जिसका कोई डिग्री नहीं है। ठीक है हार्दिक, समझ में आया? यस सर।
गुड, वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट डाउट, अगर और किसी को कोई डिफिकल्टी है प्लीज अपना हाथ उठाओ और डाउट पूछो। किसी को कोई डाउट नहीं है, देखो डाउट पूछ लो, शर्मा मत, घर की बात है। देखो मैं भी घर में बैठा हूँ, सब लोग अपने अपने घर में बैठे होंगे। अगर किसी को डाउट है प्लीज आस्क योर डिफिकल्टीज। नहीं है, गुड, किसी को है? श्रीतेज बोरा खड़े, प्लीज आस्क। सर आपने अभी ये बताया CS3 OH, तो वो क्लियर नहीं हुआ सर। CS3 OH वाली चीज क्लियर नहीं, वेरी गुड। हाँ। सब लोग बोर्ड पे देखें, देखो बोर्ड शेयर हो रहा है वहां पे। CH3OH क्या है? एक C है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे OH ग्रुप है, उसके नीचे हाइड्रोजन है, उसके इधर हाइड्रोजन है, उसके ऊपर भी हाइड्रोजन है। सिंपल सा कंपाउंड है। अब इसमें जो कार्बन है, कार्बन, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 0। यस। जो कार्बन है, रिप्लाई मत करो प्लीज, जो कार्बन है वो एक भी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके चारों तरफ ग्रुप्स है, लेकिन वो नॉन कार्बन ग्रुप्स है। तो इसका डिग्री जो हो जाएगा, इसका डिग्री जो है 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इसका डिग्री 0 है, मतलब उसका डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो जाता COH, तो ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री होता और ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री होता, क्योंकि दोनों कार्बन एक दूसरे से अटैच्ड है और दोनों कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इमेजिन कर लो, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है। ओके, ये वाला कार्बन, ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री है, दिस इज 1 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन है ये 4 डिग्री है, दिस इज 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। 1 डिग्री, ये वाला देखो ध्यान से, ये 3 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। दिस इज अ 3 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, जिनका डाउट था क्लियर हुआ सर? यस सर। गुड, थैंक यू। नेक्स्ट डिफिकल्टी, अगर किसी को डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो अहेड विद द प्रेजेंटेशन। ओके, अब हम हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग है, हाइड्रोजन जो है ना वो कार्बन का डिग्री लेता है। जैसे हम लोग हमारे पेरेंट्स का सरनेम लेते हैं, राइट? जैसे फादर का सरनेम लेते हैं ना, बच्चे जब होते हैं नए पैदा, तब उनका सरनेम क्या होता है? फैमिली सरनेम होता है। तो वैसे हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है? वो कार्बन का डिग्री लेता है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन मतलब जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री हाइड्रोजन मतलब जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। हाइड्रोजन खुद तो एक ही कार्बन से जुड़ सकता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी एक है, तो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी हाइड्रोजन सिर्फ एक ही कार्बन एटम से जुड़ सकता है, उसके अलावा तो किसी से जुड़ नहीं सकता। तो सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री नहीं होते। हाइड्रोजन क्या करता है? कार्बन का डिग्री लेता है। तो अगर कोई 3 डिग्री कार्बन है, उसको जो हाइड्रोजन रहेगा वो 3 डिग्री हाइड्रोजन रहेगा। 2 डिग्री कार्बन है, उसको जो भी और जितने भी हाइड्रोजन रहेंगे वो सारे के सारे हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन बनेंगे। 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? जो 3 डिग्री कार्बन को बॉन्डेड होगा, और 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? जो 4 डिग्री कार्बन को बॉन्डेड होगा। सिंपल है। लेकिन सोचो, 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है क्या? नहीं। किसी ने अभी डाउट पूछा था 4 से ज्यादा हो सकते हैं क्या बॉन्ड? नहीं हो सकते। तो जो कार्बन है 4 डिग्री वाला, उसके तो चारों साइड में कार्बन लग गए, तो उसकी तो वैलेंसी बची नहीं, तो वो हाइड्रोजन को तो अटैच हो नहीं सकता। इसका मतलब 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन अटैच नहीं हो सकता है ना। किसको अटैच होगा? 4 डिग्री कार्बन के पास तो जगह ही नहीं है। ठीक है, और नीचे लास्ट लाइन पढ़ लो, हाइड्रोजन टेक्स अप द डिग्री ऑफ कार्बन टू व्हिच इट इज बॉन्डेड। इसमें एग्जांपल देख लेंगे, सेम जो पहले हमने एग्जांपल देखा था वैसे ही वाला, वही स्लाइड है, वही पिक्चर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़े, फाइंड आउट द, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, फाइंड आउट द टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन ईच कंपाउंड। 4-5 कंपाउंड्स दिखाई दे रहे, इसमें हाइड्रोजन का टाइप बता दो क्या है। यहाँ तो कोई भी हाइड्रोजन का टाइप नहीं होगा, 1 डिग्री कार्बन नहीं है ये जो 3 ग्रे कलर के हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, 3 जो ग्रे कलर के हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन क्या है? 1 डिग्री हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड है। ये 3 भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, और ये दो जो हाइड्रोजन है, ध्यान से देखना, these 2 hydrogens are 2 डिग्री हाइड्रोजन। why? because they are bonded to a 2 डिग्री कार्बन। कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करो, फिर उसको जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको वो डिग्री दे दो। पेरेंट्स का सरनेम पता करो, और फिर वो जो सरनेम आया वो बच्चों का सरनेम हो जाता है बाय डिफॉल्ट।
जो कार्बन का डिग्री है वो हाइड्रोजन का डिग्री बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ये जो कार्बन है 4 डिग्री, इसको तो हाइड्रोजन बॉन्डेड ही नहीं है, हो ही नहीं सकते, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट। ये जो ग्रे वाला हाइड्रोजन है, देखो ग्रे वाला हाइड्रोजन, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, और ये जो बाकी के डार्क वाले हाइड्रोजन है ब्लैक कलर के, ये कौन से? ये 9 जो हाइड्रोजन है, ये 9 के 9 1 डिग्री हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री हाइड्रोजन इसलिए है क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड है। ओके, सिंपल है ये। किसी को डाउट है तो हाथ उठाए, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव डिफिकल्टीज। अगर आपको डाउट है हाथ उठाओ, डाउट पूछ लो। जो पढ़ाया समझ में आया? आई होप समझ में तो आया होगा, सिंपल सी क्लास थी आज, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। जाओ मत अभी, प्लीज रुको, चले मत जाओ। नेक्स्ट क्लास टुमारो सेम टाइम। होमवर्क क्या करेंगे? होमवर्क कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ रीड करके आएंगे। रीड कर लो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट। कहाँ मिलेगा नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिलेगा, स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में मिलेगा। कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है नॉमेनक्लेचर। जहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा नॉमेनक्लेचर का। नहीं मिलता है तो 10th क्लास के बुक में कहीं तो भी नॉमेनक्लेचर जैसा कुछ तो मिल ही जाएगा। नॉमेनक्लेचर जैसा कुछ हेडिंग नहीं मिला तो ऐसा IUPAC वाला हेडिंग मिल जाएगा। आई एम श्योर ये वर्ड पहले सुना होगा सब लोगों ने, IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। वही चीज हम लोगों को अभी डिस्कस करना है। ठीक है, तो प्लीज होमवर्क करके आना। स्टार्टिंग का पहला क्लास है, कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं है, टॉपिक फॉलो करते रहे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। अनूप पाटिल बोलिए। अनूप पाटिल प्लीज टेल, हाउ कैन आई हेल्प यू? Sir, हाँ सर। can you please show past 2 slides? कैन यू प्लीज शो पास्ट 2 स्लाइड्स? यस सर। आएगा पास्ट 2 स्लाइड्स। अनूप देखिए, रिप्लाई करो। ये वाला स्लाइड देखना है? सर इसके पहले वाला। ये भी पहले वाला। हाँ बोलिए सर, क्या डाउट है इसमें? नहीं सर, वो स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा यार, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, बाद में हो जाएगा। ये प्रेजेंटेशन शेयर कर देंगे सैटरडे तक, डेफिनेटली प्रेजेंटेशन शेयर हो जाएगा। ओके, श्रुति जाधव प्लीज टेल, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर जो अल्डिहाइड और फंक्शनल ग्रुप में का कार्बन है सर, वो कंसीडर करेंगे? हाँ वेरी गुड। अल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कंसीडर करेंगे क्या? हाँ करेंगे। कोई भी कार्बन हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री के लिए कार्बन से बॉन्डेड है या नहीं ये देखना है। अगर वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है तो भी चलेगा। तो एसिटिक एसिड को सोचो, एसिटिक एसिड जो है वो CH3COH है। उसमें जो दोनों कार्बन एटम्स है, वो दोनों कार्बन एटम्स क्या है? वो दोनों कार्बन एटम्स 1 डिग्री है। अल्डिहाइड वाला कार्बन एटम जो है वो भी कंसिडर करते हैं। गुड क्वेश्चन। ओके, एनीथिंग एल्स? अनूप पाटिल प्लीज टेल। अगर डाउट क्लियर हो गया हो तो हाथ नीचे कर लो। दिस PPT विल बी शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू। ओके, ठीक है, दैट इज सफिशिएंट। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। आप सब लोग आखिरी तक बैठे रहे, थैंक यू सो मच। आई होप कल भी आप सब लोग आएंगे। छुट्टी मत मांगना, वैसे घर पे हो तुम लोग। थैंक यू।